کوئی عباس ورگا ایک وکھاؤ حضرت عباس سلمدار ایویں نہیں لفظ ہوندا ذرا لفظ سنیا جے ایک بکرا رات دے بکھے چ پھڑ کے تے بھرا دا بوا کھڑکائے اندروں بیوہ پرجائی نکلے وے ویرا خیر بہن تو میرے بھرا دی عزت لے کے بیٹھی ہیں میرے بوئے تے 5 بکرے نے ایک لے کے آیا زبا تے میرے وال بھی ہو جانا آ بکرا بن لا کلے تے کسے نو دسی نہ سویرے میرے پتیجے اٹھن تے آکھی قربانی لئی ہے سویرے رسی پڑ کے گلی چ نکلن تے لوکی آکھن او غریبو او یتیمو کتھوں لئی جے تے اسی آکھیے ساڈی ماں نے قربانی لئی ہے اسی بکرا لیا ہے قسمیں اے فرش تے خوش ہون گے او عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا رفیق صاحب وعد ہے کہ نہیں ہائے ہائے یہ وے اصلاح معاشرہ یہ وے وعد جڑے والے مسلمانوں عبد الباسط صاحب اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے میں لفظ کہاں گا ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں او جڑے دوجی ماں دے بچیاں نہ پیار نہیں کردے عباس نو ویکھ عباس شیر خدا دا پتر دوسری بیوی دے وچوں میں پر سامنے حسین دی اولاد خاندان لٹا گیا کمرے بنی ہاشم میرا لفظ سنیا جے عرض کردہ ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمدی میں کیوں رو پیا اس شیر تے 25 سال ہو گئے میرے بابے نو دنیا تو گئے اجے تک اسی بھرا ویاہے بھی پورے نہیں گئے بہناں بھی ساریاں ویاہیاں نہیں گئیاں مکان بھی اجے تک مکمل نہیں میں کیوں رویا ہے واقعہ سرا دے تاج جڑے کم پیو کرنے ان پترانو کرنے پین عمر لگ جاندی جے اے باپ واقعہ سرا دے تاج میں شیر پڑھا میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی پر میں جدو قبر تے جاواں شیر پڑھنا انہیں ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے لفظ کواں گا آندیاں نے میں جملہ کواں تانوں درد آئے گا سنیا جے کدی سوچی آئی میں ہاتھ کھڑے کراؤن لگا جے ذرا سوچ کے جواب دے آجے سارے مولوی نہ سن ذاکر نہ سن لاما نہ سن مفتی نہ سن کیونکہ تو چلو پڑھیا لکھیا نہیں پر ایک گل مینوں جواب دویں 10 محرم دی رات نو رات دے 1 بجے کلا بہ کے سوچ بھی نہیں سکدا زینب دی رات کیویں لنگی ہوئے گی بیٹا یہ لائٹ بند رکھ زینب دی رات کیویں لنگی ہوئے گی قسم میں تے 10 محرم دی رات ستا نہیں میری بیگم کہن لگی جلسہ کر کے آئے جے تھکے جے رشتہ دار جتھے بھی ہوواں زندگی گزر گئی آل محمد بیان کر دیا مینوں نیند نہیں آئی صرف ایک ہی جملہ ذہن وچ سی حسین دی لاش ویکھ کے کیویں ستی ہوئے گی ویر دا سر نیزے چڑھیا ہوئے گا آئینیاں پہنا اتے بیٹھیاں نے پوچھو کسے ویر دا سر نیزے چڑھیا ویکھے آوے عرض کردہ ہے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی ویر موڑم اچھا بھئی چلو ایتھے تصور بنا دینا ہے ذرا توجہ بچے موبائل چھوڑ اور ذرا گل سن تینوں آلے نبی دا درد میں اینے بیٹھے جے میں ایتھے تصور حضرت بناؤن لگا میں ذرا 10 جدی شہادت دی خبر تے حضور آنسو بہان اجے حسین شہید نہیں ہویا نبی آنسو بہاوے مدنی نو رات نیند کیویں آوے جنہیں پڑھ لے آوے عباس کٹ گیا اور محمد کٹ گیا ہم شکل رسول کٹ گیا میں جملہ کہنے لگا ہوں آندے نے پپی روندی کیا آندی وے پترا میں اپنے بچے پترو آج جا کے پھوپیاں نو پیار کرے آجے فون کرے آجے پھوپی میں پھلا ہی رہا ذرا
लफ्ज़ बड़ा दर्द वाला है। फुफियां नूं पून करिया जे वीरो इत्थे फरूकाबाद दी मंडी च उतर के आंदियां मेरे भरा दे पुत्र इक्को सी अल्लाह नूं प्यारा हो गया है गड्डी च रोंदी है गली च रोंदी है फिर मैं वेख्या मंजी तुर भी जाए ते रोंदी है। लफ्ज़ दर्द वाला दसन लगा है इस्लाह मुआशरा कर जावा जरा दसा करबला विचों सैयद कोलों की लभदा वे वाह सैयदो करबला च जांदे जांदे रिश्तियां दे वल दस के जे रिश्ते किवें रखने ने दुनिया च किवें जीना है बर्दाश्त किवें रखनी है। जे खुतबा हज्जातुल विदा किसे वेखना है ते 10 मुहर्रम दी रात वेखे हुसैन कट गया वे पर अपने नाने दे मनन वालियां ते हाथ नहीं चुकिया। हुसैन कट गया खुद जरा सुनिया जे जुमला कहन लगा है गोद विच पुत्र दी लाश होवे आंदे पुत्र मोए नहीं भुलदे आलमा भावें हो के मरन फकीर ओ पुत्र ते पोडरी भी मरे ते मावां रोंदियां ने पुत्र चरसी भी मरे ते मावां रोंदियां ने पुत्र फीमी भी मरन ते मावां रोंदियां ने पर एक मां जरा सुनिया जे औनो मुहम्मद दी मां है एक अली दी धी ज़हरा दा दुध पीण वाली है अपने पुत्रां दी लाश सैड ते कर दिती हुसैन दे बच्चियां दी लाश गोद च रखी है। रफीक ताहर साहब दर्द वाला जुमला है गोद विच भतीजे दी लाश है आदि है वफादार भतीजिया बोल ते सही चुम लवां जुल्फ जंजीर तेरी मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं हो याद रहने वो तू कनाला नाल फुफियां तोल दित्तियां ने मरलियां ना तोलियां ये फुफियां होई जिन्हां तेरे बाबे दियां जुत्तियां पालिश कीतियां ये फुफियां हो ने जिन्हें तेरे बाप की जुत्ती दे तस्मे बंद किते। मैं अब्दुल रज़ाक सैदी साहब दे पुत्रा नू कवांगा बाप दियां पैना आवन ते इस्तकबाल करया करो उन्हां नू तस्वीर भरा दी नजर आवे। मेरा जुमला दर्द वाला है मैं सदके जावा हुसैन दी भैन तो इत्थे भैना वीरां दे खिलाफ अदालत चढ़ जांदियां ने एक भैन हुसैन दी है पुत्रा दी लाश भुल गई लोकी जीउंदियां हया नहीं करदे ज़ैनब दा वीर चले भी गया है ते आंदी है वीरा वफा वेखनी ते किसे ज़ैनब कोल वेखे पर तू जीउंदे छड़ दिते ने तू जीउंदे छड़ दिते ने रिश्ते छड़ दिते आंदी है मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहनी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों अगला जुमला कवांगा जरा दर्द ना सुनिया जी दर्द करदा पिया अजीज़ां ने मन आले नबी नू मानने वालों खानदान रसूल दे चौकीदारों जदों खानदान रसूल मैदान करबला विच जदों देखिया ज़ैनब ने नबी खैमियां वल इब्ने ज़ियाद आया शिमर पलीत आया वे कूफे दे गवर्नर हाउस च बैठा है उधर शिमर 1000 फौज दा लश्कर लैके आया वे नबी घेरा गत्या मेरे हुसैन दा जरा लफ्ज़ सुनिया जे यजीद दा बेजिया गवर्नर आया है जदों दोस्ता सामने खड़ा वे इधर खैमियां दे अंदर बीबी पाक दे हमलावर होन लगा है आंदी वे हया कर वे मेरे खैमे च ना आवी मेरी अम्मी फातिमा दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई वाह ज़ैनब तेरी अजमत तो कुर्बान जावां सब कुछ लुटाया ही पर नाने दी शरीयत दा ख्याल रखिया ही। मैं थे एक जुमला कवांगा जरा सुनिया जे ध्यान नाल जिहड़े बीबी पाक दी सवारी तुरन लगी मैं पढ़िया किताब विच खौली इब्ने यजीद दा पुत्र सारने दे चाड़िया लैके तुरिया है बीबी पाक दी सवारी रुक गई कहंदी वे बदबख्ताओ मैं नहीं उतरना कहंदे किस शर्त ते बीबी तुरेंगी कहंदी वे मैनू पहलो एक तारीख दस केड़ी भैन है जिदे सामने वीर दा सारने दे होवे ते भैन पिछे तुरन
जोगी होवे जे मैनू तोड़ नहीं मेरे वीर दा मुखड़ा अगे नू कर दे हुसैन वेख के मैं तो तुरिया नहीं जांदा सब परदेसी वतनी आए तुम्हें वीर मोड़ मोहारा आजा मेरे सोने वीरा कई बार जनाजा लैके चलीए फरूकाबादों ते भैणां लेट होवन ते सड़क ते उतरदियां वे वीरों मंजी रखे जे ते फिर पुछण दी लोड़ नहीं रहिंदी लोकी समझ जांदे किसे दी भैण आई है किसे दी मां जाई ते भैण क्यों ना रोवे भैणां नूं वीरां दी लोड़ ही बड़ी है डोले पाउण ते वीर हाफिज अब्दुल बासित साहब जनाजा पढ़ाउण ज़ाहद साहब ते मैं जनाजा पढ़ावां ते लान हुंदा है पिछे हट जाओ भरावां नूं कहो भैण नूं कबर च उतारो वीरा भैणां नूं छड्डिया जे भैणां नूं वीर कबर च उतार देने ओ मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावण वेख घरां नूं जदरे लगे मेरिया अखियां लाया ही सावन दीगर वेले जद कुड़ियां मैं इंशाअल्लाह आखिर दे ना नौजवानों दे मोबाइलों ते गुफ्तगू करनी है मेरे पुत्रों क्यों इंज मोबाइल चलाते जी क्यों इंज जनाबे आला प्रोफाइल पिछड़ा लगाते जी मैं ताड़ी सलाह वाल भी आने वाला ही पर इत्थे एक जुमला कवांगा आंदी है जदों मदीने पहुंचांगी खाने खैले कमरे खाली और बस्ती हजूर दी खाली जरा सुनिया जे जुमला दर्द वाला है आंदी है सब इलाही अच्छा चलो नबी तसव्वुर दी दुनिया चलिए हाफिज साहब किन्ने साल होए ने पौत होया 11 साल हो गए ने ईदा ते शबराताइयां लोग घरां आए सोनी आउंदे फिर मुहम्मदी जिन्हां नूं मौत ल जाए मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा जी पीरो 15 साल ते हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखूपुरी नूं हो गए जरा सुनिया जे मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ के ने यारा बेलिया दा एक दिन असां भी मदनी टुर जाना कुंडा मार के ना सवेलियां दा दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए ओ तुसा जश्न आज़ादी दे नाम ते अली दे बच्चियां दे गम भी भुला दिता मैं देखा बाजे वजाउंदे रह जे गलियां च नाच टप करते रह जे ये आजादी सी हुरमत वाला महीना ही समझ लेंदा एदी इज्जत बड़ी यू जरा सुनिया जे अज दी तकरीर कदी कला बह के सुनी कि नासिर मदनी केड़े दिल दी दुनिया च बोलदा पिया सी जरा तसव्वुर च चलिए 10 मुहर्रम दी रात होवे हाफिज अब्दुल रज़ाक सैदी साहब अज तक नहीं आए जदों फौत वाला दिन आउंदा है इन्हां नूं पुछिया जे किन्ने टेलीफोन आउंदे ने किन्नियां पोस्टां लगदियां ने अज दा दिन ही सी अब्दुल रज़ाक सैदी साहब फौत होए पोस्ट लग जांदी जिन्हों नहीं भी ओनू भी याद आ जांदी है ओ वीरा सुनो सह सह जोड़ संगत दे वेखे आखिर विथा पईयां जिन्ना बाजों छट नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद न रहियां अर्ज करदा जुमला बड़ा दर्द वाला है जरा सुनिया जे मुसलमानों अर्ज करना चाह रहा मैं जब 10 मुहर्रम दी रात आओ जरा लफ्ज़ सुनिया जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मैं किताब च पढ़िया सफर शुरू होया वे ना जी एक पुत्र वखा जिदे सामने बाप दा सारने दे चढ़े आवे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला वे जदों चले नहीं मैं तारीख च पढ़िया इमाम जवान सी दाढ़ी काली सी पर जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला दा सफर मुकम्मल करके नाना रसूल दे शहर पहुंचे कहंदे दाढ़ी सफेद हो गई ते किसे पूछया वे आबद तेरी दाढ़ी सफेद है आदे वदीले वाले हो जो मैं वेखिया है जे तुसी वेखदे हो सकदा मौत आ जांदी अच्छा भी एक मिनट जरा साइलेंस नजर झुका के जरा तसव्वुर दी दुनिया च जाओ जदों खानदान सामने कटदा आएगा बीमार का क्या आलम होगा कहां सोच होगी मेरे हुसैन के पुत्र की
कितनी लंबी सोचे होंगी। और मैं कहता हूँ वो 10 मुहर्रम की रात जो है वो आबद के लिए सदियों जैसी होगी। और ये जुमला कहूँ, जब मैयत सामने हो ना तो ये उम्मीद होती अभी उसको उठा कर ले जाना है, पर आबद को तो किसी ने हुसैन उठाने भी नहीं दिया। आबद को तो किसी ने हुसैन उठाने भी नहीं दिया। और अगला जो जुल्म हुआ वो भी सुने। बीबी पाक जब गुजरी ना तो कहा मेरे वीर की लाश के करीब तो ले चलो। और यहां बहने भाई की चारपाई से नहीं उठती, भाई की चारपाई पड़ी हो तो बहने पास बैठती है। एक कली की बेटी है जिसको पास भी नहीं बैठने दिया। और जब उठी ना तो अगला लफ्ज बड़ा है। एक बापर्दा खतून है, सफर में खैमे लगे हैं, पूछने लगी अली की बेटी का खैमा कहाँ है। हुसैन दी भैन दा खैमा। कहंदे पराठ जा। कहंदी मैं तेरे सिरे लगांगी, स्कूटी वाले साइड ते हो जा। ते जेड़े वाले अगे वधी ना बेटा चुप है, जेड़े वाले अगे वधी साइड ते हो जा, उधर साइड ते। जेड़े वाले अगे वधी वाकया बड़ा दिलचस्प है। बापर्दा खतून है और जनाब दमुश्क दे रस्ते दे विच ये वाकया है। कूफे तो जो सरे हुसैन चलिया दमुश्क की तरफ ते जनाब खैमे दे अंदर पहुंची ना ते कहंदी है मैनू हुसैन दी भैन ते बड़ा वखा। कहंदे उस खैमे च ज़ैनब बैठी ते अंदर दाखिल हुई ना, जदों अंदर दाखिल हुई ते कह लगी लो बीबी पाक थोड़ा जा पानी ते थोड़ियां जी खजूरा ते खाना लैके मैं हाजिर हुई है। कह लगी मैं नहीं दूर तो चली किसे रह ना कीता ते अज तू क्यों लेके आई है। आंदी बीबी मैनू पता लग्या इधरों हुसैन दी भैन लगना है, मैनू रात नींद नहीं पई किते कयामत नू हुसैन दी मां फातिमा ए ना कवे नी तेरे बूहे तो मेरी थी प्यासी लंघ गई सी, मैं पानी लेके आई है। बीबी कबूल करो, वाह सजदा लामा सनाओ लामरसरी, मैं आपको सलूट करता हूँ। शेख अब्दुल बासित साहब कमाल कर दिया आपने। आले मोहम्मद की नौकरी का झंडा बुलंद करके कहते अलाए कलमातुल्लाह बुलंद करने के लिए आले बैत पहुंची है, अलाए कलमातुल्लाह बुलंद करने के लिए हुसैन करबला पहुंचा है। और यहाँ जुमला सुने, जब पूछा है कहती है मैं लेकर आई हूँ, ये है सैयद, ये है हुसैन, ये है ज़ैनब, ये है आबद, ये है हदीस, ये है कुरान, ये है शरीयत, ये है इस्लाम, ये है मस्जिद, ये है मिंबर, ये है मेहराब, ये है कुरान, ये है हदीस, ये है शरीयत, ये है शान, ये है वकार, ये है जिंदगी, ये है जीना, ये है मरना, ये है गम, ये है खुशी, ये है चाहत, ये है इज्जत, ये है रसूल से प्यार। पूछने लगी है एक तरफ हुसैन की लाश, एक तरफ बच्चों की लाश, इस तरफ भतीजों की लाशें, एक तरफ भाई के बच्चों की लाशें, एक तरफ नाजी अब्बास के बाजू कटे लेकर आई। इतना गम, कंधे चूर, हाथ चूर, जिस्म चिकना चूर, दामाद पे गम, कानों में गम, आंखों में गम, सीने में गम, जिस्म में गम, हर तरफ गम गम गम। इतना गम है मगर मदहोश नहीं। ये है आले रसूल। पूछा ये पानी लेकर आने वाली जरा बता कहीं सदका तो नहीं। इतने बैठे हो कुर्बानी के जानवर के ऐब निकालते हो, कभी पैसे की तरफ देखा? इसमें तो कोई ऐब नहीं। ये कुर्बानी का जानवर लेने जाते हो, ऐब निकालते हो, एदा सिंग खराब, एदे खोर खराब। कभी गौर किया है भाई हलाल गोश्त चाहिए, इसमें तकबीर पड़ी हो। जब कसाई को कहते हो तकबीर पढ़िए, अपने पैसे पे नजर दड़ा, ये भी हलाल है कि नहीं? सैयद कौन है? कंधे गम में बाजू उठाए हुए। अच्छा एक कंधा उठाओ जिसके कंधे पे बाइयों के बाजू कटे हों, दिखाओ इस तरफ बैठे, इतने बैठे कट गए, कोई बताए। अच्छा भाई जब रसूल ने कहा था जिसके घर में दीन देखना है उसकी खुशी और गमी देखो, बेटा खामोश होकर बैठो, क्या हो गया तुम्हें?
जब रसूल ने कहा कि जिसका दीन तुमने देखना है उसकी खुशी और गमी को देखो, वाले मोहम्मद तुम्हारी अजमत पे कुर्बान जाऊं, सब कुछ कटा दिया। पूछने वाली ने पूछा, ज़ैनब तुम्हें अभी भी याद है नाना की शरीयत? कहती बोली वो मेरा खानदान लूट सकते हैं, नाना की शरीयत तो नहीं ना लूट सकते। तवज्जो भाई, नारेबाजी नहीं, गुफ्तगू सुने। मैं नारेबाजी पे इसलिए पाबंदी लगाई कि बस आज बातें होनी है, 5 मिनट मैंने और 10 मिनट गुफ्तगू करनी है बच्चों के रिलेटेड। ये बच्चे नौजवान आए हैं और इनकी सलाह करना मेरा जरूरी है। ये लफ्ज़ सुने। अच्छा जी, इंशाल्लाह रफीक साहब को मैं 10 रबीउल अव्वल नूं आना है, अक्तूबर च 10 रबीउल अव्वल नूं ज़ोहर टाइम, उत्थे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होएगी। मैं लाहौर पहुंचना, हाफिज साहब ने भी पहुंचना, मैं भी। इत्थे जुमला सुनो जरा, तवज्जो, बैठे, बड़ा कीमती लफ्ज़ कहने लगा हूं, ये नोट करे। कोई बैठा हो इधर सैयद, मैं उसको भी पैगाम देता हूं, जब बाजार में किसी से बोतल पीने लगे तो पहले ये सोच लें इस दुकान वाले की कमाई कैसी है। सैयद को कह रहा हूं, सैयद को। क्यों? करबला में सैयद ने कहा है ये सर कट तो सकता है पर नाना की शरीयत से बेवफाई नहीं कर सकता। आज कितने बैठे, हमने शरीयत से बेवफाइयां की हैं, हमने हजूर से बेवफाई की, कुरान से बेवफाई कितनी की है। मैं आखिरी गल्लां ते दबा करांगा मुसलमानों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगला जुमला बड़ा कीमती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी लड़ी च एक सफीर यजीद दे कोल बैठा है। दमिश्क दा वाक़या है, जदों सरे हुसैन पहुंचया उत्थे ते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी लड़ी विचों एक सफीर बैठा है। भाई तवज्जो भाई, माशकी नाम है प्रोफेसर नासिर साहब इसी मस्जिद में जुमा पढ़ाते। मैंने पूछा था ना आते भी कौन जुमा पढ़ाते? हकीम राशिद साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने बाबा के मिंबर को संभाल लाए और लड़ी दर लड़ी दीन फैला रहे। मैं सलूट करता हूँ आपको। और ये जहाँ मजमा बैठा है, खड़ा है, यहाँ आपको भी सलूट करता हूँ कि करबला में इतना गम है, इतना गम है, पर नाने का दीन बिल्कुल याद है, शरीयत याद है। और यहाँ ये भी कहूँगा, असी जलसा करना होवे त्याने 2 नमाज़ां कट्ठियां कर लांगे। असी जलसा करना होवे असी आने 2 नमाज़ां कट्ठियां कर लांगे। मगर वाह हुसैन, तयम्मुम करके नमाज अदा करके दुनिया नूं दस्या है हुसैन जैसा नमाजी दिखा, हुसैन जैसा कारी दिखा। अच्छा जी, इधर कारी किरात करते हैं ना, तो हजरत साहब इधर आपके कुरात कॉन्फ्रेंस कराते हैं, कारियों को टिकट देते हैं, पैसे देते हैं, फूल फेंकते हैं, उनके लिए टिश्यू रखते हैं, उनके लिए एक पानी और कावा बड़ा खास होता है, एक खास किस्म का कावा कारियों के पास पड़ा होता है, इनको पता होगा। हाँ जी, आवाज़ के लिए वो उनकी मोहब्बत में रखा होता है। मैं सवाल करने लगा हूँ, ये एक कुरान का कारी है, हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं। जहाँ हुसैन कारी था वहाँ आगे भी कारी थे, उसके पास भी कारी थे, खड़े थे। और हुसैन पे हमला करने वाले भी कारी थे, आलिम थे, पढ़े लिखे थे, सुन लो, जानते थे हुसैन कौन है। मगर हसद था कहीं हुसैन के पास शरीयत वाला कानून आ न जाए और ये हुकूमत नाना की शरीयत के मुताबिक न चल पड़े, हमारी मन मर्जियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हुसैन ने करबला में उनके सामने तयम्मुम करके ना नमाज लेट की, ना कुरान को उल्ली लगने दी। ये मोबाइल के लड़कों को देख लो, ये सारी रात टिच टिच लगे रहते हैं, इनकी उंगली थक जाती है। ये कुरान पे जितनी नाबे अल्लाह लफ्ज़ में कहने लगा हूँ, ए जिन्ना टच मोबाइल ते तुसी उंगली घसांदे हो ना, कदी हुसैन वाकू कुरान ते उंगली घसाओ, तुसी वली हो जाओ। ए जिन्ने मुंडे बैठे ने मेरे चंद भाई, वो पर्ची दें ना, क्या जितने मेरे चंद ने, मेरे मक्खन हैं, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। आले मोहम्मद की नौकरी हमें अजीज़ है। और सुन लो, ये कुरान हदीस में बातें मौजूद हैं जो बयान की हैं। आप एक एक बात का हवाला इधर रखते हैं कि मेरे नबी ने कहा था
جو قرآن اور سنت کو دل سے لگائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنے پاس رکھیں۔ تو بھائی میرے بھائی شاہد نے ذمہ لگایا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مدرسہ ساتھ ہماری بیٹیوں کا ہے، اور وہاں بچیاں پڑھتی ہیں، اوپر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی۔ بیٹا بیٹھ جائیں، 1 منٹ بیٹھ جائیں، بھی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بزرگ صاحب بڑی اچھی بات کر کے گئے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ آل محمد کی محبت جس دل میں ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس کا مسلک ہے۔ میں کسی